हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिस पे हम हर एक पहलू पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक हर एक क्लास के लिए बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती is the most important thinker here and reformer. The Arya Samaj founded by the Swami Dayanand Saraswati in 1875. You know that there is a UPSC exam question here. Swami Dayanand, there is a Arya Samaj founded by the Swami Dayanand Saraswati in 1875 undertook their task of reforming Hindu religions in the North India. There is a Hindu religion in the North India. He considered our Vedas to be infallible and the foundation of all knowledge. He rejected all those religious thoughts which were in a confessed with the Vedas. He believed that every person had to be right to have a direct access to a God. You know that? He believed that every person had to be right to have a direct access to be God. It has started with the Suddhi movement. Suddhi movement to be bring back those Hindu who is had to convert to Islam and Christianity. Satyaparth Prakash was the most important book. Satyarth Prakash is the most important book here. Here picture was Dayanand Saraswati. Swami Dayanand Saraswati, a picture on your screen. There is the most important reformer here. Arya Samaj advocated social reform and working to improve the condition of women. If the fought untouchability and the rigidity of the hereditary caste system and promoted to the social equality. The use of Hindu language in which he wrote and the project made his the idea accessible to the people of the northern India. Aryan Samaj also had a major role to play in the national movement as it is inculcated in the spirit of self-respect and self-reliance among the people. The role of Arya Samaj was considerable in a promoted to education among these masses. And some of Swami Dayanand as a follower later started a network of schools and colleges. It's called DAB. DAB means Dayanand along us Vedic. There is a DAB in a found in in area. In the country to import education who the best line without a compromising on the Vedic teaching. They encourage the teaching of their English and modern science along with the Sanskrit and Vedic education. There is important of here Arya Samaj, the Swami Dayanand Saraswati. Swami Dayanand Saraswati is the most important here. On their DAB is the diamond among Vedics. There is the most important colleges and found in all over India. त्रुटिहीन असमस्त ज्ञान को आधार बनाए हैं जिन्होंने जरूरी थी, और उन्होंने हर चीज़ों के सुधार में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। कहते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में उत्तर भारत में हिंदू धर्म को सुधारने के लिए आर्य समाज की स्थापना किया। यानी आर्य समाज की स्थापना का श्रेय जो जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को जाता है, और वह वेदों का जो है त्रुटिहित और समस्त ज्ञान का आधार मानती थी। क्योंकि वेदों के त्रुटिहित, क्योंकि आपको पता है जब वेद लिखी गई थी तो उस समय ब्राह्मणों का ही दबदबा था, और ब्राह्मण ने अपनी मर्जी से बहुत सी बातें वो लिख दी जो हमारे समाज के लिए सही नहीं था। क्योंकि उस समय सिर्फ जो है शिक्षा ब्राह्मणों में ही प्रचलित थी, आम व्यक्तियों में शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए वो अपनी मर्जी से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिए। कहते हैं ऐसे बहुत से पुराने चीज़ हैं जिनमें इन त्रुटियों का होना स्वाभाविक बात है। उन्हें सभी धार्मिक विचारों को जो वेदों से मतभेद रखते थे उनके खातिर जो खारिज कर दिया। उनका मानना है कि हर व्यक्ति का अधिकार है और वो भगवान से सीधे संपर्क रखे। यानी हर व्यक्ति का हर चीज़ पे अधिकार है, चाहे ईश्वर हो चाहे उसका जो भी चीज़ हो। कहते हैं नेचर में जो भी चीज़ मिल रही है सबका अधिकार है। उन्होंने शुद्ध आंदोलन शुरू कर दिए तो जो उन्हें हिंदुओं के वापस लाने के लिए था। यानी उन्होंने शुद्ध आंदोलन का जो है नेतृत्व किया जो हिंदुओं को आपस हिंदू धर्म में लाने के लिए प्रोत्साहित था। जिन्होंने इस्लाम और ईसाई धर्म अपना लिया था उनको सत्यार्थ प्रकाश सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक थी। यानी जिन्होंने इस्लाम और ईसाई, क्योंकि उस समय आपको पता ही है
जो 18वीं 19वीं शताब्दी में मैक्सिमम देखा जाए तो ईसाई धर्म का और इस्लाम धर्म का प्रचार खूब जोर पे था और हिंदू विलुप्त होते चले जा रहे थे। यहाँ पर जो आप तस्वीर देख रहे होंगे ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, जिनका समाज के लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था और इन्होंने हर एक कुप्रथाओं के ऊपर जो है खुरजोड़ प्रहार किया और समाज से दूर करने का हर संभव उन्होंने कोशिश किया और उन्होंने आर्य समाज का स्थापक भी माना जाता है, इसलिए इनका जो है योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके समक्ष जो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। कहते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज ने जो है सामाजिक सुधार की वकालत की, यानी जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया उसमें मेन उनका विचारधारा इसी बात के ऊपर था कि सामाजिक सुधार किया जाए और महिलाओं की दशा में सुधार के लिए काम भी किया गया। उन्होंने अस्पृश्यता और वर्षा को जाति व्यवस्था के विरुद्ध कठोर लड़ाई की तथा सामाजिक समानता को आगे बढ़ाया, यानी उन्होंने अस्पृश्यता और वंशागत जो जाति व्यवस्था थी कि जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेगा उसी का ही कार्य व्यवसाय सभी अपनाना पड़ेगा, और जो हमारे समाज में अछूता यानी अनटचेबिलिटी की जो भावनाएं थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस पर पुरजोर जो है प्रहार किया और समाज से दूर करने का हर संभव प्रयत्न किया। आर्य समाज की जो है राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख भूमिका रही, जिसके दौरान उन्होंने लोगों के बीच आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना का विकास किया। अब देखिए, कोई व्यक्ति के पास अगर आत्मविश्वास और आत्मसम्मान नहीं है तो वह व्यक्ति जीने लायक नहीं रह जाता है, और इन्होंने समाज में जो लोगों के पास आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना खो गई थी उनको विकास में इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। आर्य समाज की भूमिका जनता के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने में सराहनीय थी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने बाद में स्कूल और कॉलेज का एक जो है नेटवर्क डीएवी आरंभ किया। आज डीएवी देखिए हर क्षेत्र में आपको मिल जाएगा किसी न किसी रूप में, यानी आज के समय में कॉलेज स्कूल जो है डीएवी कॉलेज के नाम से जाना जाता है और ये आपके क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं नज़र आ ही जाएगा। दयानंद इसका नाम जो था दयानंद एंग्लो वैदिक, यानी DAB, दयानंद एंग्लो वैदिक इसका अर्थ होता है, ठीक है, जहाँ देश में वैदिक शिक्षाओं पर समझौता किए बिना पश्चिमी शिक्षा प्रदान की जाती है। और उन्होंने संस्कृति और वैदिक शिक्षा के साथ अंग्रेजी और आधुनिक विज्ञान की शिक्षा को भी काफ़ी प्रोत्साहित किया, क्योंकि उनका विश्वास था कि अगर पुराने समय है, अगर आधुनिक शिक्षा का हम अनुसरण नहीं करते हैं तो हमारा जो है पूर्ण विकास नहीं हो सकता। और यही विचारधारा के साथ उन्होंने जो है अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिक विज्ञान को जो है प्रोत्साहित किया।